हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स आर देयर, different types of tax rates that are applicable in GST. That all things we are going to discuss in this video are very useful to you, as well as it is very useful for exams, competitive exams also, and for college exam, school exam also. So to meet economic needs of the country, taxes are collected by the government. To develop the economy, these types of taxes are collected. These taxes are categorized into two categories. One, direct taxes, another is indirect taxes. Suppose Mr. A has earned some income, and on this income he is paying income tax. Now, this income tax is directly paid to the government. So that is why what Mr. A is paying, Mr. A is paying direct tax. Why direct tax? He himself paying tax to the government. So that is why this type of tax is known as direct tax. Let us take another example. Suppose Mr. B purchase some goods or services, and he will pay GST, that is goods and service tax, to the shopkeeper. Now what shopkeeper will do, whatever GST he has received from the Mr. B will deposited by him to the government. So in indirect way, Mr. B is ultimately paying tax to the government, but not directly, but he is paying to the shopkeeper, and shopkeeper is then depositing this tax to the government. So shopkeeper becomes a mediator. So this is the best example to understand the concept of GST. This is the best example about what is direct tax and what is indirect tax. You know, everybody in India is paying indirect tax, from beggar to rich person. Indirect tax does not discriminate between rich and poor. Everybody has to pay some kind of GST, that is goods and service tax. So now indirect taxes are collected by central government, state government, and governments of union territories. In India, in Indian context, different types of taxes were collected by different governments. Because of variety of indirect taxes and compliance of their separate legal provisions from the viewpoint of its management, it was very complex affair for government, tax authorities and taxpayers to eliminate such type of complexities in indirect taxes. Instead of having different provisions of central government, state governments, and governments of union territory, new taxes new tax act is introduced with the slogan of one nation one tax, that is goods and service tax act, that is GST. It becomes effective from 1st July 2017 in the country. GST can be explained as follows. So that means, what is the earlier system? In earlier system, every state, every union territory and central has a different administrative system, and that takes too much time for collecting tax, and cost wise also it is very costly. So to eliminate this kind of thing, what government has done, government has introduced GST, and this date is a historical date. You should remember this date, 1st July 2017. Why it is an important day? Why it is a historical date? Because on this day GST was introduced in India. But for your general knowledge, I will tell you, it was not introduced in Jammu and Kashmir. When it was introduced in whole India, including Jammu and Kashmir, so then answer is 8 July. So on 8 July 2017, it was introduced in JNK. So now on that day, you can say that GST will be applicable. GST was applicable to whole of India. Now GST can be explained as follow. Indirect taxes of central government. That means these are the indirect taxes which are collected by central government, and these are the indirect taxes of the state government and union territory governments. ये सारे टैक्स है
जो सब मर्ज हो गए हैं जीएसटी में, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, ये सारे टैक्सेस है जो जीएसटी में मर्ज हो गए। और ये सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो टैक्सेस है जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, उसको शॉर्टकट में वैट बोलते हैं, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, दीज टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द स्टेट। नाउ ये सारे टैक्स मर्ज हो गए और एक ही टैक्स बन गया, वो था जीएसटी। पर अभी भी कई ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, जिस पे वैट भी लगता है, बट मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी ही एप्लीकेबल है। सो नाउ व्हाट वी कैन से, all taxes are withdrawn or cancelled, new tax came into effect from 1st July 2017। ये सारे टैक्स निकल गए। राइट नाउ for basic knowledge you should understand these all tax are eliminated and new tax comes with effect from 1st July 2017। To being uniformity and object oriented implementation of GST for center, state and union territories, 5 GST acts are formed, which are as follow. So if it is asked in exam how many GST acts are there, so your answer should be 5. These are very important things that you should remember. Now first one is Central Goods and Service Tax Act, CGST Act, the CGST Act. And in this act, provision pertaining to central goods and service tax are covered. And second one is State Goods and Service Tax Act, the SGST Act. In this act, provision pertaining to state goods and service tax are covered. Then next one is Union Territories Goods and Services Tax Act, the UTGST Act. In this act, provisions pertaining to Union Territories Goods and Services are covered. Then last one, Integrated Goods and Service Tax Act. This is not last one, the IGST Act. In this act, provisions pertaining to supply of goods or services or both mode other than own state and union territory are covered. That means if you are supplying other than own state or other than own union territory, then IGST will be applicable. We will learn about this in this video only. Goods and Service Tax GST Compensation Act, the GST Compensation Sales Act. Due to implementation of GST, those states who are having loss of tax collection, for their compensation, this act is formed. Under the Compensation Act, the state government whose tax collection will be reduced will compensate with the same. आपको थोड़ा इसका आइडिया दे दूं, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उससे रिलेटेड मेरा एक जीएसटी कंपनसेशन सेस का वीडियो है, तो उसको जाके आप रिफ़र करो, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस शॉर्टकट में समझते हैं। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ उससे पहले क्या था कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट। एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट था, से फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट था, तो उसका पूरा जो टैक्स का रेवेन्यू था, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू उसी को जाता था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को जाता था। बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। सो दैट मीन्स जो स्टेट कंज्यूम करेगा गुड्स को, तो उस स्टेट को उसका रेवेन्यू आएगा। तो पहले से ये क्या हो गया, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट था उसको अब रेवेन्यू नहीं मिलेगा, जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको सारा रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया और जीएसटी पूरा अलग से हो गया। तो अब इसको चेंज करना था गवर्नमेंट को। तो अब ये क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट था उसको लॉस होने लगा, तब वो लॉस को कंपनसेट कौन करेगा? तो दैट मीन्स ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उन लोगों ने अपोजिशन लिया कि हमारा रेवेन्यू का क्या, हमको रेवेन्यू कैसे मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया और ऐसा बोला कि आपको जो भी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू का लॉस 5 साल तक हम कंपनसेट करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग था, से फॉर एग्जांपल जीएसटी के पहले इनको 150 रुपीज का रेवेन्यू मिल रहा था, से फॉर एग्जांपल 150 रुपीज का, बट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी उनको रेवेन्यू मिला 147।
दैट मीन्स 3 रुपीज उनको कम मिले, क्योंकि जीएसटी आया तो उनका रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ज़्यादा था बट वो कंज्यूमिंग स्टेट था। जैसे से फॉर एग्जांपल गुजरात से महाराष्ट्र में गुड्स जा रहा है, अब रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलता था, पहले वो रेवेन्यू किसको मिलता था, गुजरात को मिलता था, बट अब रेवेन्यू किसको मिलता है, महाराष्ट्र को, तो अब गुजरात को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है कि मान लो कि उनको पहले 150 रुपीज का रेवेन्यू मिलता था बट अब 147, तो 3 रुपीज का लॉस हुआ, तो वो कौन करेगी कंपनसेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी उसको, और ये 3 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये पे करने का अमाउंट कहाँ से लाएगी, तो वो एक जीएसटी कंपनसेशन सेल्स वो लेवी करेगी, और वो किस पे लेवी करेगी, जो भी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेल्स लगेगा उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू में से इनको कंपनसेट किया जाएगा। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेल्स क्या होता है, और फिर भी आपको अगर डिटेल में जानना है आप मेरे वीडियो में जीएसटी कंपनसेशन सेल्स बाय एलियसगर वोरा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी। मीनिंग: different taxes of central government and state governments are withdrawn and goods and service tax are covered under one tax. This tax is known as goods and services tax. Remember this name, goods and services tax. Tax which is applicable to supply of goods and services is known as goods and services tax. So whenever you supply any goods or services, whether it is input, that is purchase, or whether it is output, that is sell, what tax is levied? Goods and services tax, and its acronym, that means short name, is GST. The special feature of GST are as follow. ये वन बाय वन उसका स्पेशल फीचर्स है, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। वन टैक्स, पहला पॉइंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली। दैट मीन्स ये पूरा एक वन टैक्स ही है, हम लोग उसको जीएसटी बोलते हैं। 5 टैक्सेस है बट 5 टैक्स को हम जीएसटी ही बोलते हैं, सो दैट इज वाई इट इज ए वन टैक्स। टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, सो दैट मीन्स हियर taxes is collected tax is collected on supply of goods and completion of services instead of tax collection on production or sale of goods or providing of services. Earlier system में whenever goods are produced, whenever goods are sold, whenever services are provided, at that time tax is collected. But now the thing is that whenever you are providing, whenever you are supplying goods or services, at that time tax is collected. So this is the difference. Here there is a production, sale, providing of service, these words are eliminated, removed, and now whenever you are supplying, whether it is input supply or output supply, at that time tax is collected. Now third feature is GST Council. Who GST Council manage whole thing. Entire operation and regulation of GST are done through GST Council. Each state has representation in GST Council. The finance minister of the central center works as a chairman of this council. That means what? यहाँ पे हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, and who is a chairperson if it is asked in exam. So that means answer is finance minister is the chairperson of the GST Council. और GST Council का काम क्या होता है? रेट डिसाइड करना, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करना, कुछ अपडेट है तो उसको प्रोवाइड करना। तो ये सारा जो मैनेजमेंट का काम होता है वो जीएसटी काउंसिल करते हैं। और उसके मेंबर्स कौन है? हर एक स्टेट का एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे, और जो सेंटर में चेयरपर्सन कौन होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसका चेयरपर्सन होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज जीएसटी रेट्स। ऑल जीएसटी रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। सभी रेट्स को जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है। इंपोर्ट एंड जीएसटी, imports of goods and services are treated as interstate supply. Here it is important. Whenever you are importing, that means bringing something into India from a place
outside India is considered as import. Now, on import, custom duty is applicable, but as it is understood, it is deemed to be understood as an interstate supply. That means उस पे IGST भी लगता है. वो interstate हुआ तो IGST उसको हम बाद में समझेंगे. Interstate क्या है, intrastate क्या है. Now, input tax credit. Input tax credit means what? GST paid on purchase is allowable deduction from sale of goods and sale of goods and services. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आपको थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा. एक वीडियो अभी इसके बाद आपको प्ले होगा जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पूरा चेन समझा देगा. तो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग दैट वीडियो. So first of all, you have to understand the concept of what input tax credit and what is that. Let us take one example. Say for example, Mr. A supplies goods of rupees 1 lakh at the rate 18% of GST. 18,000 is a tax. So total amount 1,18,000 to Mr. B. Now what Mr. B will do? Mr. B will supply the same goods by doing some alteration or addition in the value, and he is supplying goods of rupees 1,50,000 to Mr. C, and value of supply is 1,50,000, GST at 18%, that is 27,000. So total amount comes to 1,77,000. Now, what is the liability of Mr. B? That means how much Mr. B is little bit confused, how much he has to pay amount to the government, and what amount he should collect from the customer, and what is the tax credit that is available to him. So these different types of question comes to his mind. उसके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं और उसको सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा कि क्या करना है. So Mr. B is liable to pay tax of rupees 27,000 to the department. यानी डिपार्टमेंट को उसको 27,000, GST डिपार्टमेंट है उसको 27,000 पे करने की लायबिलिटी उसकी अराइज हुई है. क्यों ऐसा? बिकॉज उसने मिस्टर सी के पास से 27,000 का टैक्स लिया है. मिस्टर सी इज ए कस्टमर, तो ये उसको पे करना है. तो मिस्टर बी सीए के पास जाता है कि क्या मुझे ये 27,000 जो मिला है वो सारा का सारा गवर्नमेंट को पे कर देना है. तो फिर मैंने जब मिस्टर ए के पास परचेस किया था तो वहां पे भी मैंने 18,000 पे किया, और कस्टमर के पास जो मुझे 27 मिला है वो भी मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी को तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. तो सीए ने एडवाइस दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, डोंट वरी मिस्टर बी, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. मिस्टर बी कैन क्लेम ITC of rupees 18,000 for the payment of GST subject to fulfillment of certain conditions. That means if you follow the certain condition, if you satisfy certain condition, then you will get credit of 18,000. That means to government how much you will pay? Only difference between 27,000 and 18,000, because Mr. B has already paid 18,000 to the A, and this Mr. A will pay this 18,000 to the government. So there is no loss to the government also. So what is the final status? In the ledger of Mr. B, Mr. B can discharge liability to pay GST in a following manner. In liability ledger of Mr. B, 27,000 is there. Now he will take credit, debit to electronic क्रेडिट लेजर 18,000, उसका 18,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मिस्टर बी ने ये जब मिस्टर ए के पास से परचेज किया था तो उस एट द टाइम ऑफ इनपुट सप्लाई ये टैक्स पे कर दिया था. तो पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना होगा? 9,000. सो सिर्फ 9,000 बी को पे करना है. सो गवर्नमेंट को भी कोई लॉस नहीं हुआ, मिस्टर बी को भी अपनी पॉकेट में से कुछ भी पे नहीं करना पड़ा.
क्योंकि देखो 27,000 उसने कस्टमर के पास से मिला था, तो 18,000 उसमें से रख लिया अपने पास और सिर्फ 9,000 पे किया। और गवर्नमेंट को भी मिस्टर ए के पास से 18,000 मिला था जो मिस्टर बी ने पे किया था, और मिस्टर बी ने 27,000 मिला था, सिर्फ उसमें से 9,000 गवर्नमेंट को पे किया। तो 18,000 पहले स्टेज में गवर्नमेंट को मिला और दूसरे स्टेज में गवर्नमेंट को मिला 9,000। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी 27,000 मिल गया दो अलग अलग स्टेज में। तो इसमें कस्टमर को भी बेनिफिट मिला क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हुआ। कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स व्हाट, टैक्स पे टैक्स लेना। अगर मिस्टर बी 1,18,000 पे टैक्स लेता और फिर उसमें अपना वैल्यू ऐड करता, तो 18,000 पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता वो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता। तो कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट को भी पूरा टैक्स मिला, एंड मिस्टर बी को भी अपनी पॉकेट में से कुछ भी पे नहीं किया करना पड़ा। तो इसलिए all persons are happy now. So this is the concept of input tax credit. So at the time of input supply, whatever tax is paid by a supplier, that is available as a credit when he supply the same thing to the client or customer. So this is, you should remember whenever you are learning about input tax credit, कि जो भी टैक्स अर्लियर स्टेज में पे करता है तो उसका क्रेडिट मिल जाता है if you follow the certain condition. Next point is tax distribution. An appropriate tax distribution system for central and state government is made available in this tax. That means it is a central and state government is made available in this tax. यहाँ पे tax distribution होता है. Tax determination. All tax rates on goods and supply are determined on the basis of heads of goods and services. So जो भी rates है गुड्स के या सप्लाई के, वो डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या नेचर है गुड्स का, क्या सर्विसेज है, उसके बेसिस से टैक्स रेट डिसाइड होता है। और टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में जो भी टैक्स अवेलेबल मिलता है वो अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्री डिटरमिन टैक्स रेट स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे अपना प्री डिटरमिन टैक्स स्ट्रक्चर पहले से ही अवेलेबल है, उसी को फॉलो किया जाता है। 5 GST एक्ट्स आर देयर। In the context of GST, 5 acts are passed. So if it is asked how many acts are there in GST, 5 acts, and you know those 5 acts: CGST, SGST, UTGST, IGST, and GST Compensation Cess Act. Uniformity. Now GST laws, rules, procedure, and rates of taxes are similar across the country. For goods and service tax, the word is GST used. Now supply of goods or services or both. The terminology of supply is used in place of rule of goods and services or both. The supply of goods or services or both are supplied within the state and union territory, outside the state and union territory. It can be disclosed as follows. Supply of goods or service tax or both. So if supply within the state, within union territory, within own state, within own union territory, then it is called intrastate transaction. That means कब वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाता है, जब आप अपने ही स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट सेल करते हो, अपने ही यूनियन टेरिटरी में सेल करते हो, तब उसको इंट्रा स्टेट। से फॉर एग्जांपल गुजरात में वडोदरा टू सूरत ऐसा सेल होता है, तो दैट मीन्स इट इज ए इंट्रा स्टेट। तब कौन सा टैक्स लगता है, तो CGST प्लस SGST कंपल्सरी ये टैक्स लगेगा, क्योंकि ये विद इन द स्टेट हुआ, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, तो अगर ये यूनियन टेरिटरी है तो CGST तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके साथ क्या लगेगा, UTGST, क्योंकि ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद इन ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी हुआ तो कौन सा टैक्स लेविएबल है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों टैक्स साथ में लगेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन कर देता हूँ और यहाँ पे एक और ऑप्शन रख देता हूँ, अगर वहां पे SGST एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर विद इन यूनियन टेरिटरी हुआ तो UTGST एप्लीकेबल होगा। नाउ सप्लाई आउट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी अदर देन ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, then it is called interstate transaction. That means state to UT, then UT to state,
then import, then state to another state, next state. So it is called interstate transaction. That means between two state, between two UT, between one state and UT. So if this kind of transaction happens, then it is called interstate transaction. And in that case, which type of tax is leviable? So answer is integrated goods and service tax. So supply यहाँ पे लिखा गया देखो, सप्लाई विद इन ओन स्टेट और यूटी. अगर विद इन स्टेट हुआ, within under this category of supply, purchase or sales, the supply of goods or services or both are confined to own state or UT, then which type of tax are leviable? So then answer is central goods and services tax, CGST, and state goods and services tax, SGST. यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे SGST आएगा. Central goods and service tax and state goods and service tax act. For example, goods of rupees, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ राजकोट. नाउ इन दिस केस GST rate is 12%. Here GST will be levied and collected on the 10,000 at 12%, that is 1200. Now 50% of 12% will be recorded as CGST and remaining 50% as SGST. तो यहाँ पे जो 50% है वो क्या माना जाएगा, आपका CGST, और जो बाकी का 50% है वो SGST होगा. तो दैट मीन्स ये ट्रांजेक्शन में ₹600, that is 6% of 10,000 is known as CGST, and it is for central government, and for union territories it is known as Union Territories Goods and Service Tax, that is UTGST. And ₹600, that is 6% of ₹10,000 is known as SGST or the respective state, here Gujarat government. If this transaction was done Union Territory Chandigarh, say for example, in this case 600, that is at 10%, will be collected by UTGST. तो अगर ये चंडीगढ़ में हुआ होता तो SGST ट्रांजेक्शन नहीं लगता, एज इट इज हैपन इन गुजरात. सो वो गुजरात में हुआ है इसलिए वो SGST एप्लीकेबल है. पर अगर वो चंडीगढ़ में होता, यूनियन टेरिटरी में होता, तो UTGST एप्लीकेबल होता. सो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विसेज और बोथ डन बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी in their own geographical territory, GST collected on such supply is distributed equally between CGST and SGST oblique UTGST. So within state, within UT अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कौन सा टैक्स लगेगा, कंपल्सरीली CGST तो लगेगा ही, बट अगर विद इन स्टेट है तो SGST एप्लीकेबल होगा, और अगर विद इन यूनियन टेरिटरी है तो CGST के साथ UTGST एप्लीकेबल होगा. Now supply outside the state or union territory, under this category of supply, the supply of goods or services or both are outside of own state or union territory. In this case of supply, only one type of tax is leviable or collected. This GST is known as Integrated Goods and Service Tax, IGST. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि say for example, goods of ₹10,000 is sold by a trader of Ahmedabad to the trader of Jaipur. That means Ahmedabad is in Gujarat and Jaipur is in Rajasthan. So GST rate is 12%. Here GST will be levied and collected on 10,000 at 12%, that is 1200, will be recorded as IGST, और उसको क्या बोलेंगे, Integrated Goods and Service Tax, and entire tax goes to the central government. तो यहाँ पे पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, बट एक्चुअली बाद में वो अपोर्शन किया जाता है जहाँ पे वो कंज्यूम हुआ है वो स्टेट में. जैसे बाद में वो जब मान लो कि जयपुर में ही कंज्यूम हो गया, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जयपुर को अपना जो भी टैक्स मिला है उसमें से 50% या जो भी डिसाइड किया है वो पोर्शन उसको दिया जाता है, कंज्यूमिंग स्टेट को दिया जाता है. सो व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई इज डन बाय ट्रेडर विद इन आवर ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नोन एज इंट्रास्टेट सप्लाई, while supply transaction of supply is done by trader outside the own state or union territory is known as interstate supply. यहाँ पे own state है. So if supply takes place within state or within union territory, then it is a intrastate transaction. When it is outside the state
और आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी देन इट इज ए इंटरस्टेट सप्लाई। अगर ओन स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा, CGST प्लस SGST ऑब्लिक UTGST, और आउटसाइड द स्टेट है तो CGST SGST कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, वो है IGST। आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ मैं आपको लास्ट में करवाने वाला हूँ। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेबल GST फॉर एक्विजिशन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है, से फॉर एग्जाम एक्विजिशन और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई विद इन ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है तो क्या टैक्स लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST और UTGST। इनपुट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज ए परचेज। एंड सप्लाई आउटसाइड द स्टेट हुआ तो इनपुट IGST एप्लीकेबल होगा। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST और UTGST कब लगेगा, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ within state. If it is within state, then CGST, output CGST, output SGST will be applicable. If it is within UT, then output CGST, output UTGST applicable होगा। ये कब है, जब आप सेल कर रहे हो। And output IGST when applicable, when sale is made between two state, between two UT or between one state or UT, तो इस केस में output IGST applicable होगा। नाउ बेनिफिट्स ऑफ GST क्या है, वन टैक्स, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस टैक्स आर सबस्यूम्ड इन वन टैक्स ओनली एंड दैट इज GST। सबका अलग अलग टैक्स था बट सभी टैक्स सबस्यूम्ड होके GST में आ गए, सो दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रेट बेनिफिट। सिंपल टैक्स सिस्टम ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये एकदम सिंपल बन गया है। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, before implementation of GST, taxpayer had to pay double taxes which is removed under GST, पूरा रिमूव हो चुका है। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, GST implementation has brought price reduction in goods and services. यूनिफॉर्म प्राइसेस, यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज इमर्ज अक्रॉस द नेशन, पूरे कंट्री में एक ही रेट है टैक्स का, तो इस तरह से पूरे कंट्री में एक ही प्राइस होगा कोई भी गुड्स पे, बिकॉज सेम अमाउंट में टैक्स लिया जाता है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, इवेजन मीन्स चोरी। ट्रांसपेरेंसी की वजह से देयर इज ए रिडक्शन इन साइज ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स सिस्टम हैज गॉट सक्सेस टू एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा एक चेन वर्क करता है, जो आपको मैंने पहले समझाया, तो यहाँ पे कोई भी चेन को टैक्स पे नहीं करेगा तो वो चेन टूट जाएगा और वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है और इसकी वजह से टैक्स इवेजन कम होता है और टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST paid on purchase is deducted from GST payable on sale, hence net amount of GST is payable by the taxpayer only। तो यानी यहाँ पे जितना भी आपने परचेस किया है उसका सारा आपको क्रेडिट मिल जाता है अगर आप उसी चीज को सेल करते हो, बट अगर आप कंज्यूम करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलता। बट अगर आप सेल कर देते हो एज इट इज, तो आपने जितना भी परचेस के टाइम पे टैक्स पे किया है तो वो सारा आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दैट मीन्स you do not have to pay any single penny of tax from your own pocket as a dealer, but if you are a consumer then automatically tax will be paid from your own pocket। Useful for economy of the nation gets stable, balanced regional development, balanced development of region would take place and consequently regional imbalances would reduce। How regional development get balanced, because government collect tax and those collected tax will be utilized for those region which is not that much developed, so that is why every region get equal chance to get developed। Reduction in administrative work, there is a significant reduction in administrative work। Reduction in government operation, another benefit of GST is reduction in government operation। बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम हो गया, बिकॉज बहुत सारे टैक्स थे जो मर्ज होके GST में आ गए हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था और जो रिडक्शन था, बहुत सारा वर्क रिड्यूस हो गया, तो इस तरह से रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो इफेक्टिव बन गया। अब आपको ये रेट्स याद रखना है। गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। अंडर दिस एक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी रेट डिसाइड किया है वो नेसेसिटी के हिसाब से डिसाइड किया है।
जैसे मान लो कि कोई चीज़ बहुत नेसेसरी है, उस पर टैक्स कम रखा है. These tax rates are decided keeping in mind the nature of needs from the basic needs to luxury needs. So जो basic needs goods होता है उस पर टैक्स शायद नहीं लिया जाता, और लिया भी जाता है तो बहुत कम. But those things which are luxury needs, on that product GST will be charged at a heavy rate. The range of GST rates is between 0% to 28%. GST rates for intra and interstate supply of goods and or services or both. Notification number 1 by 2017 central government and 1 by 2017 integrated tax. So these are the different rates are given. Schedule and GST rate. Schedule 1 5%. It is interstate और यूनियन टेरिटरी सप्लाई है तो ये 5% है, दैट इज IGST. अगर IGST 5% है तो CGST 2.5%, 2.5% SGST. अगर इन ये सब इंट्रास्टेट और इंट्रा यूनियन टेरिटरी में लगता है. शेड्यूल 2 में 12% है, दैट मीन 6% CGST, 6% SGST. शेड्यूल 3 में 18% है, दैट मीन्स 9% CGST, 9% SGST. शेड्यूल 4 में 28% है, दैट मीन्स 14% CGST, 14% SGST. शेड्यूल 5 में IGST 3% है, दैट मीन्स 1.5%, 1.5%. एंड शेड्यूल 6 में 0.25% है, दैट मीन्स 0.125%, 0.125%. So for special goods, this last two is for special goods GST rate is 0.25% and 3%. In case of supply, 4 tax slab applicable. Normally these 4 slabs are applicable right now. The correct option from the those given below each question. GST includes desk of central and state government. So GST includes what? Indirect tax, direct tax, direct and indirect tax, indirect tax and direct tax. So answer is A, indirect tax. So this is the correct answer. आप मैं आंसर दूं उससे पहले आंसर देने का ट्राई कीजिए तो आपको उसमें फायदा होगा. Which of the following was state goods and goods indirect tax prior to GST? GST के पहले स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा था? तो कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स था या सर्विस टैक्स? तो आंसर इज वैल्यू एडेड टैक्स. Which of the following was not central government indirect tax prior to GST? यानी इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स था जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं था? तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या परचेज टैक्स? तो परचेज टैक्स इसका आंसर है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST ईयर इज, तो ये बहुत ही सिंपल है. कौन से साल में GST आया था? तो 2017. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अगर परचेज विद इन द स्टेट हुआ तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है. अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो CGST प्लस SGST ऑब्लिक UTGST विल बी लेविएबल. विच टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी? सो आंसर इज IGST. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन GST? इसमें से कौन सा टैक्स GST में सबस्यूम्ड नहीं हुआ है? सो वैट है, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है या एंटरटेनमेंट टैक्स? तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स को लिखेंगे बिकॉज इनकम टैक्स अभी भी है और ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं. व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेशल टैक्स और कॉमन टैक्स? सो वेरी सिंपल, GST इज ए इनडायरेक्ट टैक्स. Before GST, which of the following indirect tax was levied by the state government? So excise duty, custom duty, service tax और entertainment tax. So state government, ये बाकी जो excise duty है, custom duty and service tax है, these are the central government levy. But before GST, entertainment tax is the state government levy. Now before GST, which of the following indirect tax was not included in state government? कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड नहीं होता था? So VAT, purchase tax, service tax, entertainment tax. Answer is service tax because वो सर्विस टैक्स इंक्लूड नहीं होता था. बाकी के सारे वैट स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे बिफोर GST. बिफोर GST, which of the following indirect tax was levied by the central government? So वैट है, परचेज टैक्स है, सर्विस टैक्स है या एंटरटेनमेंट टैक्स है? So answer is C, service tax. Why? Because VAT, purchase tax and entertainment tax are state government levy before GST, but only service tax is the central government levy.
Before GST, which of the following indirect tax was not included in the central government? इसमें से कौन सा जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूड नहीं होता था? सो आंसर इज वेट, सी। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवी किया जाता था। इट इज ए कंप्लीटली पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम, वेरी सिंपल, 1 जुलाई 2017। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर, सो आंसर इज 8 जुलाई 2017। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी एबोलिश्ड बाय द जीएसटी? सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स? आंसर इज सर्विस टैक्स। अभी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी है, बट सर्विस टैक्स अभी नहीं है। इन इंडिया हाउ मेनी एक्ट्स आर फॉर्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी? तो कितना एक्ट अभी जीएसटी में है? टोटल 5। डी ऑप्शन इज देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया? कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी है? तो 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर। देन नेक्स्ट वन, इंडियन जीएसटी मॉडल हैज डैश रेट्स स्ट्रक्चर। तो कितना रेट का स्ट्रक्चर है? 4। मैंने आपको बताया था अभी 4 रेट्स है, और वो सारे रेट्स आपको पहले मैंने दिखा दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरस्टेट सप्लाई? इंटरस्टेट सप्लाई के लिए कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है? तो आंसर इज आईजीएसटी। बाकी के सारे ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनियन टेरिटरी सप्लाई? अगर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होता है, ओनली यूनियन टेरिटरी, विच टाइप ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल? तो आंसर इज सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। नेक्स्ट रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर इन आईजीएसटी? सो इट इज ए integrated tax, that is C option. What does C stands for CGST? In CGST, so it is a central. B is answer. What does G stands for in GST? G means goods and services tax. What does S stands for SGST? S means B, State Goods and Service Tax Act. What does UT stands for? UTGST? Answer is Union Territory Goods and Service Tax. Remaining options are not applicable here. Now, what are the tax rates? Tax is levied on intra-state supply. अगर intra-state supply हुआ, state है, तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? तो CGST plus SGST. D is the answer. Which GST is charged when movement of goods and services from one state to another? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाता है, तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है? सो आईजीएसटी। ये बार बार थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, बट आपका कंसेप्ट बहुत इससे स्ट्रांग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो जब भी इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी तो एप्लीकेबल होता ही है, और उसके साथ साथ ऑप्शन सी, दैट इज आईजीएसटी इज ऑल्सो लेविड। आप मैं आंसर दूं उससे पहले आंसर देने का ट्राई कीजिए, जिससे आपको कितना रिवाइज हुआ है, कितना कंटेंट समझ में आया है, वो आपको पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट इज नॉट एप्लीकेबल अंडर जीएसटी? तो इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल नहीं है? 5% एप्लीकेबल है, 12% एप्लीकेबल है, 18% भी एप्लीकेबल है, तो 25% इज नॉट एप्लीकेबल हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन सप्लाई? तो आंसर इज बी, और नहीं है, यानी सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विस नहीं, दोनों ऐड होता है। जीएसटी इज डेस्क बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आंसर इज बी, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द, कौन से वैल्यू पे टैक्स लगता है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू, दैट मीन्स जिस वैल्यू से आप ट्रांजेक्शन करते हो उसी पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है।
हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. कौन से स्टेट में है, यानी कहाँ पे होता है वो? न्यू दिल्ली में, बिकॉज न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया. Which terminology is used in place of rule of goods and services or both? कौन सा? तो डिमांड है, सप्लाई है, रिटेल है या कंजम्पशन है? सो आंसर इज सप्लाई. हाउ मेनी टैक्स स्लैब्स आर देयर फॉर जीएसटी? मेनली फॉर सर्विसेज. मेनली फॉर सर्विसेज के लिए कितने हैं? तो आंसर ऑप्शन इज सी, दैट इज 4 टैक्स स्लैब्स आर देयर. तो जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब है? 4. नाउ नेक्स्ट वन, द टैक्स IGST इज चार्ज बाय डैश गवर्नमेंट. तो आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है. जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक ही टैक्स लगता है. What is the lowest rate of tax prescribed under IGST? IGST में सबसे लोएस्ट रेट क्या है? आंसर इज 0.25%. दिस इज द लोएस्ट स्पेशल रेट्स. GST law rules procedure and GST rates are dash across the country. Different, similar, nominal or higher. GST laws, rules, procedure and GST rates are similar across the country. For which type of goods GST rates are 0.25% and 3%? तो स्पेशल गुड्स, जो स्पेशल गुड्स होते हैं उसके लिए रेट्स है 0.25% एंड 3%. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. ये था पूरा जीएसटी का रिवीजन. आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.